Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, in the last lecture we have discussed about the neuron, the structure of the neuron, types of neuron and how the nerve impulse is transmitted. Now in this lecture we'll be discussing about nervous system in detail. So we will discuss about the different parts of nervous system, how nervous system is divided into different parts. So you can see the human nervous system is divided into three main parts, that is your central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Now central nervous system, it is further divided into brain and spinal cord. Then peripheral nervous system is divided into cranial nerves and spinal nerves. So the cranial nerves, as the name suggests, they arise from brain, and spinal nerves, they arise from spinal cord. Now autonomic nervous system is again further divided into two categories, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Now we will be discussing one by one all the different parts of nervous system. Okay, so let's start with the central nervous system. Now the central nervous system, it is composed of brain and spinal cord, as you have already seen. So the brain, it controls all the functions of the human body. As you all know, this is the main controlling center. ब्रेन को मेन कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है, जो कि जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, that is all performed or all is controlled by brain only. Now spinal cord जो है, it works as a relay channel for signals between brain and पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट वर्क्स एज अ रिले. रिले माने होता है पास करना, मीन्स जो भी मैसेज आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज पास फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन. सो and the same happens when any action is to be taken, the brain send the message. So the same process applied. So the spinal cord, it works as a relay channel. Okay, all the signals which are transmitted to brain and from brain to the muscles, so it serve as a medium, you can say, okay, between the brain and peripheral nervous system. Okay, because peripheral nervous system, you have seen the two types of nerves arise from peripheral nervous system. Okay, now let's talk about peripheral nervous system. Peripheral nervous system is composed of cranial nerves and spinal nerves. So two types of nerve arise from peripheral nervous system, and there are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Now the cranial nerves हैं, they come out they come out from the brain and go to the organs in the हेड रीजन. सो हेड रीजन, जो भी हमारा हेड रीजन होता है, उसमें आप देखते हो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. आई है आपका, देन योर माउथ इज देयर, ईयर्स हैं. ओके, सो मैनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन हेड. सो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो हेड ब्रेन से अराइज होती हैं, और जो भी ऑर्गन्स हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये मैसेजेस ले जाती हैं. नाउ स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो दे आर 31 पेयर्स, एंड दीज नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, और जो भी ऑर्गन्स हैं बिलो द हेड रीजन, ठीक है, हेड के नीचे अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक योर स्टमक है, देन योर हैंड्स, लेग्स, so many different types of organs are there. तो सभी में ये spinal nerves जो होती हैं, so they all comes out from spinal cord and go to the different organs which are present below the head region. So इस तरह ये जो peripheral nervous system है, ये दो parts में divided है. एक set of cranial nerves and set of spinal nerves, जो कि अलग अलग इसको control करती हैं. Okay, now the third is your autonomic nervous system. Autonomic nervous system जो है, as the name suggests, automatic means यहाँ पे कोई भी, it is not our control, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. जितने भी involuntary actions होते हैं, ठीक है, like blinking of eyes हुआ, okay, then
देन देर आर सो मैनी ऑर्गन्स, आपका जो ब्रीदिंग होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होना, कार्डियक जो हार्ट बीट होता है, सो सब में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सो ये अपने आप होते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो सच एक्शंस आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो ऑटोनॉमिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन विच रन्स along द स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, इसमें जो है नर्व गैंग्लियंस की चेन होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग रन करती है, और जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ओके, उन सबको ये कंट्रोल करती है। सो दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक nervous system heightens the activity of the organ as per the need. For example, during running there is an increased demand of oxygen of the body. This is fulfilled by an increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system works to increase the breathing rate, heart rate in this case. So sympathetic nervous system जो है, it coordinates with the organs. जो भी ऑर्गन्स की एक्टिविटी होती है, जो भी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस कि सपोज जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, सम एक्सरसाइज लाइक रनिंग और सम फिजिकल एक्सरसाइज वी आर डूइंग, जॉगिंग, रनिंग, सो उस समय क्या होता है, द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, जो भी हमारे बॉडी की डिमांड होती है ऑक्सीजन की, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज। हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट कि जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, दौड़ने का या कोई जल्दी जल्दी वर्क कर रहे हैं, तो उस समय आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है तो देन ऑटोमेटिकली योर हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीजेस। नॉर्मली हम कहते हैं हार्ट बीट जो है वो इन अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ 70 to 72 पर मिनट्स हार्ट बीट होनी चाहिए, बट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ड्यूरिंग some exertion, or some when you are doing some exercise like running or jogging, so that time what happen, your oxygen demand increases, so your heart has to pump more and more blood to the organs, because you all know कि जो blood होता है that is only the channel who which contains blood, और उसी के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। सो ब्लड जो है पंपिंग, ब्लड की पंपिंग इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सो इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द हार्ट रेट। और ये जो है कौन कंट्रोल करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, दिस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ओनली, बट किस तरह के इनवॉलेंट्री एक्शंस, लाइक जो अभी हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो वो इंक्रीज करता है हर चीज़, योर हार्ट बीट इंक्रीजेज, देन योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज। नाउ पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सब कुछ लोअर करेगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं, दोनों सिस्टम्स जो हैं एंटागोनिस्टिक एक्ट करते हैं। एंटागोनिस्टिक माने होता है ऑपोजिट, एक अगर कुछ बढ़ा रहा है तो बढ़ा ही थोड़ी ना रहेगा ऑलवेज। क्या आपकी हार्ट बीट हमेशा इंक्रीज रहती है, या फिर जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा ऐसी रहती? नहीं, इट स्लोज डाउन। ठीक है, आफ्टर अ टाइम गैप ये जो है स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो स्लोइंग डाउन होता है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सो दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम slows down the activity of an organ and thus has a calming effect. means calming effect लाना, कूल करना बॉडी को नॉर्मलाइज करना, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी बॉडी एक पीक पे गई है जिसकी एक्टिविटीज़, उसको फिर से नॉर्मल पे लाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। like during sleep the breathing rate slows down and so does the heart। like जब हम सोते हैं उस समय जो है ब्रीदिंग रेट और हमारा हार्ट रेट जो है दोनों स्लो डाउन कर जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो उस समय वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑर्गन्स कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, बट
कुछ ऑर्गन्स का जो वर्किंग होता है वो स्टॉप हो जाता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, सो द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीज्ड, तो डिमांड ऑक्सीजन की कम हो जाती है, सो बट नेचुरल है हार्ट रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, एंड व्हेन ब्रीदिंग रेट विल स्लो डाउन दैट मीन्स कि आपका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा. सो ऑल दीज एक्टिविटी दिस इज facilitated by parasympathetic nervous system. It can be said that parasympathetic nervous system help in the conservation of energy. So this is also वेरी गुड पॉइंट कि हम कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन यू कैन ईजिली पॉइंट आउट तो इट इज़ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है, बचा के रखता है, ताकि जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो एक्स्ट्रा एनर्जी की, वो उस समय एनर्जी यूज़ हो सके. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स, in brief, a brief description about all the parts of the nervous system. Now next lecture में हम brain को detail में पढ़ेंगे, the structure of the brain and the different parts of the brain. Okay students, so thank you everybody.